Hello, everyone, and welcome to Supporting Learners. I hope you all are doing really well. This is the part B of KVPY 2017 Stream SPSX Biology MCQs. The part A of this question paper I have already covered in the previous video. So, in case you haven't watched part A, then I will link that video in the description box. So, do check out the description box to find the video of part A of this question paper. आज के वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, स्पेशली फ्रॉम जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी. तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे इन क्वेश्चन से. अगर आप KVPY में स्ट्रीम SP या SX से अपीयर हो रहे हैं तो क्लास 12th के चैप्टर्स 5 and 6, that is principles of inheritance and variation and also molecular basis of inheritance. These chapters are very important for you. Then if I talk about class 11th, तो class 11th के chapters 8, 9 and 10, that is cell, the unit of life, then biomolecules and then cell cycle. These are extremely important chapters when it comes to stream SB of KVPY. राइट. तो सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को टारगेट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको इन चैप्टर्स में से, और सबसे पहले आपको ये चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स इज ऑल्सो यू आर सपोज टू डू दैट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विद क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज द क्वेश्चन 111 of the question paper, but for our video that is question number 1. So the question says the genetic distance between genes A and B is 10 centimorgan. An organism with capital A small b combination of alleles is crossed with an organism with small a capital B combination of alleles. What will be the percentage of gametes with capital A capital B allele combination produced by an F1 individual? And your options are option A 1, option B 5, option C 10 and option D 50. So काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन ने दिया हुआ है हमें कि जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन जीन्स A एंड B 10 सेंटीमॉर्गन. दो जीन्स है A और B, उनके बीच में जेनेटिक डिस्टेंस है 10 सेंटीमॉर्गन. सेंटीमॉर्गन इज अ यूनिट ऑफ जेनेटिक डिस्टेंस. सेंटीमॉर्गन और मैप यूनिट, सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट एक ही बात है. दिस इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग जेनेटिक लिंकेज. तो लिंकेज से क्वेश्चन आया हुआ है एंड वी नो दैट 1 सेंटीमॉर्गन और यू कैन से 1 मैप यूनिट, one map unit represents or it is equal to 1% recombinant frequency, right? 1% recombinant frequency. So 10 map units will represent or it will be equal to 10% recombinant frequency, right? So यहाँ से अब अगर हम बात करें पेरेंटल टाइप की, पेरेंटल टाइप कितने परसेंट होंगे? दैट विल बी इक्वल टू 90% एंड द रिकॉम्बिनेंट टाइप्स विल बी इक्वल टू 10%, राइट? बिकॉज द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज 10%. तो रिकॉम्बिनेंट टाइप हो गए हमारे 10%. नाउ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हमें गिवन है, दैट इज कैपिटल A स्मॉल b एंड small a capital B. These are the parental combination of alleles. तो यहाँ से हम recombinant combinations निकाल सकते हैं. recombinant combinations होंगे capital A capital B और small a small b, right? अब आगे देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है. क्वेश्चन ने पूछा है what will be the percentage of gametes with capital A capital B allele combination. तो इस कैपिटल A कैपिटल B एलील कॉम्बिनेशन का क्या परसेंटेज होगा? अब देखो रिकॉम्बिनेंट टाइप में हमारे पास दो ही टाइप्स है, कैपिटल A कैपिटल B और स्मॉल a स्मॉल b. ये दोनों का टोटल परसेंटेज कितना है? 10%. तो कैपिटल A कैपिटल B का कितना हो गया? 5% और स्मॉल a स्मॉल b का कितना हो गया? 5%. तो क्वेश्चन ने हमसे जो पूछा हुआ है परसेंटेज ऑफ gametes with capital A capital B allele combination.
produced by F1 individual, that will be equal to 5%, right? So the answer is option B, 5. Correct answer is option B. Now moving on to question number 2. Question number 2 says proteins P, Q and R are associated with intact organellar membrane in a cell. If the intact organelle is treated with high ionic strength buffer, only protein R remained associated with the membrane fraction. Based on this, one could conclude that option A, P and Q are peripheral membrane proteins. Option B, R is a peripheral membrane protein. Then option C, P and Q are integral membrane bound proteins. Or D, P is peripheral and Q is integral membrane protein. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको सेल मेम्ब्रेन से. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. सो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर देखो, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. एक है हमारे इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दीज आर द इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, एंड दिस इज द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन. क्या डिफरेंस है दोनों में? इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं दे आर परमानेंटली एसोसिएटेड और अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन. इनको मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये परमानेंटली एसोसिएटेड होते हैं मेम्ब्रेन से, राइट. और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है ये टेम्पररी एसोसिएशन होता है इनका मेम्ब्रेन के साथ. सो दे आर टेम्पररीली एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन. सो इनको एक्सट्रैक्ट करना मेम्ब्रेन से आसान होता है, ईजी होता है, राइट. सो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि हमारा अगर एक ऑर्गेनल है, इफ यू हैव एन ऑर्गेनल एंड इट इज ट्रीटेड विद हाई आयनिक स्ट्रेंथ बफर, हाई आयनिक स्ट्रेंथ बफर से ट्रीट करने के बाद सिर्फ प्रोटीन आर जो है दैट रिमेन्स एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन फ्रैक्शन. तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो प्रोटीन आर है, प्रोटीन आर इज an integral membrane protein. ठीक है, क्योंकि R प्रोटीन जो है that remained associated with the membrane fraction. R प्रोटीन हाई आयनिक स्ट्रेंथ बफर से ट्रीट करने के बाद भी मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहा. ठीक है, तो यहाँ पर R इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है. तो इसके हिसाब से हमारे प्रोटीन P और Q जो हैं दे आर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, राइट. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. P एंड Q आर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये ऑप्शन सही है, बट बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं. R इज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, नो. R इज इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्योंकि दिस प्रोटीन R रिमेन्ड एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन फ्रैक्शन इवन आफ्टर ट्रीटमेंट विद हाई आयनिक स्ट्रेंथ बफर, राइट. P and Q are integral membrane bound proteins, no. P and Q are peripheral membrane bound proteins. ये ऑप्शन गलत हो गया. D, P is peripheral and Q is integral membrane protein, no. Both P and Q are peripheral membrane proteins. So this option is also incorrect. So our correct option will be option A. P and Q are peripheral membrane proteins, right? Now question number 3. In photosynthesis, oxygen is produced by A, photosystem 1 from carbon dioxide, B, photosystem 2 from carbon dioxide, C, photosystem 1 from water, और D, photosystem 2 from water. So यहाँ पर photosynthesis से question आया हुआ है and the question says oxygen is produced by. तो हमें पता है oxygen is produced by the splitting of water, right? So carbon dioxide वाला option गलत हो गया. ये दोनों options A और B wrong है. Oxygen is produced by the splitting of water, and we also know that water splitting complex is associated with photosystem 2. So option D, photosystem 2 from water, is the right answer for this question. And this is given in your NCERT photosynthesis chapter में splitting of water जहाँ पर आपको given है paragraph, वहाँ पर देखो यहाँ पे given है water splitting complex is associated with PS2. एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर. यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो वाटर से प्रोड्यूस होती है, राइट. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन सेज हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 अमाइनो एसिड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम
20 different amino acids. And options are A 20 raised to by 100, B 100 raised to by 20, C 2 raised to by 20 or D 20 multiplied by 100. So biomolecules से question है ये. We know that proteins, they are polypeptides. Proteins are chains of amino acids. ठीक है, amino acids को अगर आप link कर दोगे peptide bond से, so you will get a polypeptide or a protein. ठीक है, so protein के building blocks होते हैं amino acids. अब 20 different amino acids से आप कितने different proteins बना सकते हो, और हर protein में जो है 100 amino acids होने चाहिए. सो आप कितने डिफरेंट प्रोटीन्स बना सकते हो, ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है. सो आंसर इज 20 रेज़्ड पर 100. ए 20 रेज़्ड पर 100. इतने सारे डिफरेंट प्रोटीन्स आप बना सकते हो फ्रॉम 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, एंड these proteins they consist of 100 amino acids, right? So the right answer is 20 raised per 100. Now question number 5. Molecular weight of E. coli DNA is 3.1 into 10 raised per 9 grams per mole. Average molecular weight of nucleotide pair is 660 grams per mole, and each nucleotide pair contributes to 0.34 nanometers to the length of DNA. The length of E. coli DNA molecule will be approximately, options are A 0.8 nanometers, B 1.6 nanometers, C 1.6 micrometers और D 1.6 millimeter. So काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? वी हैव बीन गिवन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ई कोलाई डीएनए. ई कोलाई डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 रेज़्ड पर 9 ग्राम्स पर मोल. राइट, और क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर, राइट, दैट इज इक्वल टू 660 ग्राम्स पर मोल. ये हमें गिवन है. अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझ लेते हैं पहले. दिस इज अ डायग्राम ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. अब हमें पता है डीएनए में क्या होते हैं. डीएनए हैज गॉट दीज न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, राइट. डीएनए हैज गॉट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स. अब ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए ये क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए? देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए, पूरे ई कोलाई डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ये जितने बेस पेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड पेयर. अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड पेयर के मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, तो मेरे पास पूरे ई कोलाई डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा. So I can write down that molecular weight of E. coli DNA is equal to number of nucleotide base pairs multiplied by average molecular weight of nucleotide pair. राइट, तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ई कोलाई डीएनए यहाँ पर गिवन है 3.1 इंटू 10 रेज़्ड पर 9 ग्राम्स पर मोल, और मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर भी गिवन है, दैट इज 660 ग्राम्स पर मोल. सो आई कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स फ्रॉम हियर. सो नंबर ऑफ बेस पेयर्स will be equal to molecular weight of E. coli DNA upon average molecular weight of nucleotide pair. ठीक है, ये कितना हो गया? मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 3.1 इंटू 10 रेज़्ड पर 9 ग्राम्स पर मोल अपॉन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर इज 660 ग्राम्स पर मोल. सो दिस विल बी इक्वल टू 4.7 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 6. सो ये मेरे आ गए नंबर ऑफ बेस पेयर्स. ठीक है, इतने मेरे पास डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं. अब मुझे क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए. अब लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए का मतलब क्या है? मुझे
पूरे ई कोलाई डीएनए की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालूंगी मैं? नंबर ऑफ दीज बेस पेयर्स, ये जो बेस पेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स में जितना डिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय टोटल मेरे पास कितने बेस पेयर्स है, तो मेरी लेंथ आ जाएगी पूरे ई कोलाई डीएनए की। राइट, so the length of E. coli DNA is equal to number of base pairs multiplied by distance between each nucleotide pair. Each nucleotide pair. तो ये मेरे पास कितना आ गया? नंबर ऑफ बेस पेयर्स हमारे कितने आ गए? 4.6 इंटू 10⁻⁶, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा, multiplied by distance between each nucleotide pair is given to us, that is 0.34 nanometers. तो ये कितना हो जाएगा? The answer will come out to be approximately 1.6 into 10⁻⁶ nanometers. Right, but nanometers में हमारे पास ये ऑप्शन तो बन नहीं रहा, तो हमारा आंसर हो गया मिलीमीटर्स में 1.6 mm. ठीक है, 1.6 mm, ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, मैथ्स इन्वॉल्व थी इस क्वेश्चन में। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 6. Okay, so question says which one of the following options is true with respect to emigration? A, it is difference between births and the deaths in a population. No, emigration does not mean this. Option B, it is difference between individuals who have come to a habitat and who have left the habitat. No, this is also incorrect. C, it involves individuals of different species coming to a habitat from elsewhere during a period of consideration. No, ये भी गलत है. It involves individuals of a population leaving a habitat. Yes, during the time period under consideration. Yes, emigration का मतलब कि जो इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट को लीव करके किसी और हैबिटेट में जा रहे हैं. राइट, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Choose the correct combination of statement given below related to cysteine residue in protein. First, cysteine can be linked to tyrosine by SO bond. Second, cysteine can be linked to another cysteine by SS bond. Third, cysteine can complex with Zn2 plus. And fourth, cysteine can be linked to methionine by SS bond. And these are your 4 options. तो यहाँ पर सिस्टीन जो है वो अमाइनो एसिड है और टायरोसिन भी एक अमाइनो एसिड है. ठीक है, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड द स्पेशल थिंग अबाउट सिस्टीन दैट इट इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड. सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है ये. ठीक है, अगर आप एसबी स्ट्रीम से इस एग्जाम को दे रहे हैं, अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई वुड से दैट 20 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर जो है वो आपको याद होने चाहिए, बिकॉज एक क्वेश्चन अमाइनो एसिड से लगातार पूछा जा रहा है KVPY स्ट्रीम SBSX में. राइट, सो सिस्टीन जो है दैट इज़ अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड और 2 सिस्टीन अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिंक्ड होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टीन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. अब अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अमाइनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है दैट इज NH2, देन COOH ग्रुप, एसिड ग्रुप इज देयर, देन देयर इज वन हाइड्रोजन एंड देयर इज वन R ग्रुप. तो यहाँ पर R ग्रुप क्या होता है? CH2SH. दिस इज द R ग्रुप. राइट, तो यहाँ पर दिस इज वन सिस्टीन and this is another cysteine. Right, so 2 cysteine amino acids, they are linked together by disulfide bond. This is the disulfide bond, SS bond. Right, तो यहाँ पर 2 cysteine रेसिड्यूज जो हैं वो कंबाइन होकर बनाते हैं सिस्टाइन. ठीक है, so this is cysteine. Cysteine is formed by joining 2 cysteine amino acids. Right,
सो यहाँ पर ये ऑप्शन 2 जो है, सिस्टीन कैन बी लिंक टू अनदर सिस्टीन बाय एसएस बॉन्ड, दिस इज राइट. एंड स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो राइट, सिस्टीन कैन कॉम्प्लेक्स विद Zn2+, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बट सिस्टीन कैन नॉट बी लिंक्ड विद टायरोसिन बाय SO बॉन्ड, ये गलत है. दो अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है. सिमिलरली स्टेटमेंट 4 भी गलत हो गई, बिकॉज सिस्टीन मिथ्योनिन इज ऑल्सो एन अमाइनो एसिड. सिस्टीन विल बी लिंक टू मिथ्योनिन अगेन बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड नॉट SS बॉन्ड. सो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट 2 और 3 ये ठीक है. सो ऑप्शन B, 2 and 3 is the right answer for this question. Moving on to question number 8. This is question number 8. The minimum number of plants to be screened to obtain a plant of the genotype capital A, small b, capital C, small c, and capital D, small d, from a cross between plants of genotype capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c, capital D, small d, and capital A, capital B, small b, capital C, and capital D, small d is. Options are A, 8, B, 16, C, 32 and D, 64. तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें दो प्लांट्स जिनके जीनोटाइप्स गिवन है, हमें उनके बीच में हमें क्रॉस करना है. सो लेट्स राइट डाउन दिस. कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D, स्मॉल d, राइट, इज टू बी क्रॉस्ड विद दिस वन, राइट. और हमारे को जो प्लांट ऑब्टेन करना है उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c, एंड कैपिटल D, स्मॉल d. ये हमें ऑब्टेन करना है. तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी स्क्रीन्ड. अब देखो, अब अगर हम इसको ले लें, व्हेन इफ वी कंसिडर जीन A, तो कैपिटल A, स्मॉल a इंटू कैपिटल A अगर आप करोगे तो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, कैपिटल A एंड कैपिटल A, स्मॉल a, राइट. आपको क्या ऑब्टेन करना है इन दोनों में से, यू हैव टू ऑब्टेन कैपिटल A, स्मॉल a. क्या प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, 1/2. भाई 50% ये आ सकते, 50% कैपिटल A आने के चांस है और 50% इसके आने के चांस है. सो 1/2 विल बी the probability, right? Similarly, if you do with capital B, small b and capital B, small b, तो यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, गेमीट्स क्या बन जाएंगे, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल B, स्मॉल b. So you can obtain the following combinations. Right? Now we have to obtain which one, we have to obtain small b. तो small b आने के चांस कितने हो गए, 1/4, राइट. तो यहाँ पर A वाले में हमने देखा कैपिटल A, स्मॉल a आने के चांस हो गए 1/2. मल्टीप्लाई कर दो इसको विथ स्मॉल b, 1/4. अब सिमिलरली अगर आप कैपिटल C, स्मॉल c को क्रॉस करोगे विथ कैपिटल C, सो कैपिटल C, स्मॉल c आने के चांस कितने हैं, 1/2, ठीक है. एंड सिमिलरली अगर हम कैपिटल D, स्मॉल d को क्रॉस करेंगे विथ कैपिटल D, स्मॉल d, तो कैपिटल D, स्मॉल d आने के चांसेस कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2. सो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1/2, 1/4, 1/2 एंड 1/2 कितना हो गया, 1/32, राइट. सो यहाँ पर 32 मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स हमें स्क्रीन करने पड़ेंगे. सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you have understood this. This is just you have to find out the probability of getting a particular genotype, right? Then we have question number 9. Question number 9 says when a purebred red flower producing plant of genotype capital R is crossed with a purebred white flower producing plant of genotype small r, all the F1 plants produced pink flowers. If all the plants in each generation from F1 to F6 are self, what will be the percentage of plants with red and white flowers in the final population consisting of a large number of individuals? Consider that flower color has no effect on reproduction and survival.
Options are A 3 to 4, B 12 to 13, C 49 to 51 and D 97 to 100. अब देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्वेश्चन आया हुआ है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम क्या देखते हैं कि अगर हम क्रॉस करेंगे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है, दीज आर द पेरेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल आर इज रेड एंड स्मॉल आर इज वाइट. ठीक है, तो यहाँ पे गैमीट्स क्या बन जाएंगे हमारे, कैपिटल आर एंड यहाँ से बन जाएंगे स्मॉल आर. देन इफ यू ऑब्टेन दी F1 तो वी विल गेट कैपिटल आर स्मॉल आर. कैपिटल आर स्मॉल आर विल बी पिंक. इसका फिनोटाइप क्या होगा, पिंक होगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. कोई भी एलील अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कोई भी एलील दूसरे एलील पर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है. इसीलिए कैपिटल आर स्मॉल आर जब हम लिखते हैं तो उसका फिनोटाइप क्या होता है, पिंक. नाउ वी विल सेल्फ दी F1, सेल्फिंग F1. अब हम F1 को सेल्फ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी द गैमीट्स, राइट, एंड वी विल ऑब्टेन F2. नाउ F2 क्या होगा हमारा, कैपिटल आर स्मॉल आर, again capital R small r and small r. Now the phenotypes will be, this will be red, this will be pink and this will be white, right? So the ratio will be 1:2:1. Both genotypic and phenotypic ratios 1:1 in this case of incomplete dominance, right? अब हमें क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि F1 to F6 को अगर हम सेल्फ करते जाएंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्लांट्स विद रेड एंड वाइट फ्लावर्स फाइनल पॉपुलेशन में कितनी होंगी. ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम परसेंटेज देखें, परसेंटेज ऑफ रेड एंड वाइट फ्लावर्स कितनी होगी F2 में. परसेंटेज ऑफ रेड एंड वाइट फ्लावर्स विल बी इक्वल टू 50%, है ना, क्योंकि 50% हमारे पिंक फ्लावर्स हैं और 25% हमारे रेड हैं और 25% हमारे वाइट हैं, है ना. 25% हो गए हमारे रेड फ्लावर्स, 25% हो गए वाइट फ्लावर्स और हमारे 50% हो गए पिंक फ्लावर्स, है ना. तो रेड और वाइट दोनों अगर हम देखें तो 25 + 25 50% है, राइट. और परसेंटेज ऑफ पिंक फ्लावर्स भी हमारे कितने हैं, परसेंटेज ऑफ पिंक फ्लावर्स इज ऑल्सो 50%. अगर हम F2 तक की बात करें, अगर हम F3 में इसको लेके जाएं, ठीक है, F3 में अगर हम लेके जाएं तो अगर हम देखें कि कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, यही तीन हमारे जीनोटाइप्स आए F2 में. अगर हम इसको सेल्फ करेंगे, कैपिटल आर की सेल्फिंग करेंगे, दैट मीन्स कैपिटल आर इनटू कैपिटल आर, देन वी विल ऑब्वियसली गेट रेड फ्लावर्स, सारे रेड फ्लावर्स होंगे. अगर हम स्मॉल आर की सेल्फिंग करेंगे, स्मॉल आर इनटू स्मॉल आर, तो ऑब्वियसली वी विल ऑल गेट वाइट फ्लावर्स, सारे वाइट फ्लावर्स मिलेंगे. बट अगर हम इसकी सेल्फिंग करेंगे, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 50% रेड एंड वाइट होंगे, 50% रेड एंड वाइट एंड 50% विल बी पिंक फ्लावर्स. ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो पिंक फ्लावर्स कितने कम हैं और रेड वाइट होमोजाइगस रेड होमोजाइगस वाइट एंड इन दिस केस जो हमने यहाँ से ऑब्टेन किया फ्रॉम हेट्रोजाइगस फ्रॉम पिंक सेल्फिंग ऑफ दीज पिंक फ्लावर्स, यहाँ से भी 50% हमें मिल गया. ठीक है, सो दिस विल बी, अगर हम इसको F6 तक लेके जाएं, F6 तक हम देखेंगे कि पिंक फ्लावर्स जो है वो
कम होंगे और मेजर परसेंटेज जो होगा वो किसका होगा, रेड और वाइट फ्लावर्स का। तो रेड और वाइट फ्लावर्स यहाँ पर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो रेड और वाइट फ्लावर्स का उसने हमसे पूछा हुआ है कि कितने होंगे फाइनल पॉपुलेशन में परसेंटेज, तो मैक्सिमम परसेंटेज होगी रेड और वाइट फ्लावर्स की F6 तक। तो 97 to 100% will be the right answer for this question. Option D is the right answer. Right? Question number 10 and the last question of this video. ये क्वेश्चन आया हुआ है लैक ऑपेरॉन से, अच्छा क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। The schematic below describes the status of lac operon in the absence of lactose. Which one of the following happens when lactose is present in the cell? And options are A, lactose binds with the promoter and stops the transcription of I. Lactose is converted to allolactose, which binds to P-lac and results in the displacement of a repressor from O. C, lactose is converted to allolactose, which binds to the repressor protein and prevents its interaction with O. Or lactose has no effect on the status of lac operon. सो यहाँ पर आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लैक ऑपेरॉन की। सो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं लैक ऑपेरॉन को। देखो, लैक ऑपेरॉन जो है, पहली बात तो लैक ऑपेरॉन है क्या? लैक ऑपेरॉन एक ग्रुप ऑफ जीन्स है जिनके पास एक सिंगल प्रमोटर है, ठीक है, और इसका काम क्या है? बेसिकली लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना और ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। why does bacteria or E. coli or bacteria it needs a lac operon? It is because it is able to metabolize and transport lactose, ठीक है। लैक्टोज बैक्टीरिया का बेसिकली फूड है, खाना है, जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये ऑपेरॉन ऑन होगा, अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो ये ऑपेरॉन ऑफ होगा। सो बेसिकली लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए बैक्टीरिया को 3 एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। वो एंजाइम्स हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज। ये 3 एंजाइम्स नीडेड हैं बैक्टीरिया को, ई कोलाई को, फॉर मेटाबोलाइजिंग लैक्टोज, ठीक है। अब इन 3 एंजाइम्स के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, जीन्स कोड करेंगे इन एंजाइम्स के, एंड दीज आर द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y एंड A। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, राइट। ये तीनों जीन्स जो हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल प्रमोटर। P जो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज अ प्रमोटर। तो दीज 3 जीन्स आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल प्रमोटर, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये 3 जीन्स जो हैं एक mRNA बनाती हैं। जब इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो एक सिंगल mRNA बनेगा विच इज़ कॉल्ड द लैक mRNA, एंड दिस mRNA विल इवेंचुअली फॉर्म और दिस mRNA विल बी ट्रांसलेटेड, ठीक है, टू फॉर्म दीज 3 एंजाइम्स, राइट। अब अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया ये 3 एंजाइम्स बनाएगा, ठीक है। इन 3 स्ट्रक्चरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी। अगर लैक्टोज मीडियम में है ही नहीं तो ये ऑपेरॉन ऑफ रहेगा, ये तीनों जीन्स जो हैं ट्रांसक्राइब नहीं होंगी, तो ये 3 एंजाइम्स जो यहाँ बन रहे हैं वो यहाँ नहीं बनेंगे। So in presence of inducer, these 3 enzymes will be formed, and in the absence of inducer क्या है? Inducer यहाँ पे lactose और allolactose, that is the inducer, because अगर lactose present है तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, अगर lactose present नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। So lactose is the inducer, ठीक है। अब देखो ये है I जीन, ये तो 3 हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स थी Z, Y और A। इसके अलावा भी जीन्स होती है, दैट इज अ प्रमोटर जीन एंड द आई जीन। आई इज द इनहिबिटर जीन, ठीक है। दिस इनहिबिटर जीन कोड्स फॉर अ रिप्रेसर mRNA। रिप्रेसर वर्ड से आप समझ जाओ, रिप्रेसर का मतलब ही क्या होता है? रिप्रेसर का मतलब होता है टू स्लो डाउन, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन को स्लो डाउन करेगा। तो रिप्रेसर mRNA विल कोड फॉर अ रिप्रेसर प्रोटीन, दिस इज द रिप्रेसर प्रोटीन। अब अगर हमारा इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज या एलोलैक्टोज ये मीडियम में अगर प्रेजेंट है तो ये इंड्यूसर जा कर के बाइंड कर जाएगा इस
रिप्रेसर के साथ और रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस रिप्रेसर का काम क्या था? ट्रांसक्रिप्शन को स्लो डाउन करना, रिप्रेस करना। अब हमने इसी को ही इनएक्टिवेट कर दिया, इस रिप्रेसर को, तो अब क्या होगा? हमारी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो पाएगी। ये 3 जीन्स हम ट्रांसक्राइब कर पाएंगे, बैक्टीरिया ट्रांसक्राइब कर पाएगा ये 3 जीन्स, right? So transcription will take place, lac mRNA will be formed and these 3 enzymes will be formed. ये तीनों enzymes form होंगे और बैक्टीरिया लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर पाएगा, right? बट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर का केस दिया हुआ है। अगर लैक्टोज यानी कि इंड्यूसर एब्सेंट है मीडियम में तो क्या होगा भाई? ये इनहिबिटर जो जीन है, आई जीन जो है, that will obviously make this repressor mRNA, ये repressor mRNA बनाता रहेगा ये वाला जीन, इनहिबिटर जीन। तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल तो बनता रहेगा, बट सिंस द इंड्यूसर इज नॉट प्रेजेंट, अब यहाँ पर इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिप्रेसर के साथ कोई इंड्यूसर बाइंड नहीं करेगा, तो ये रिप्रेसर एक्टिव रहेगा। दिस इज एक्टिव रिप्रेसर। तो ये रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर के साथ अब बाइंड कर जाएगा। ऑपरेटर के साथ जाकर के अगर ये बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ऑपेरॉन को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा, ये तीनों जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं होंगी, ठीक है। सो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है कि व्हाट विल हैपन व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द सेल। क्या हो सकता है? लैक्टोज बाइंड्स टू प्रमोटर जीन एंड स्टॉप्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इनहिबिटर। नो, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये गलत है। लैक्टोज बाइंड्स इनहिबिटर, lactose binds to promoter gene and stops the transcription of I. This is absolutely wrong. Lactose is converted to allolactose and binds to P-lac and results in the displacement of repressor from O. No, this is absolutely wrong. ऐसा कुछ भी कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा है। लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है बट दैट डज नॉट बाइंड टू P-lac, राइट? RNA polymerase will bind with the promoter gene, right? Then third is lactose is converted to allolactose, ये ठीक है, which binds to repressor protein. Yes, हमारा जो inducer है that is a lactose that does bind to the repressor protein and it prevents interaction with O. ठीक है, जब lactose बाइंड कर जाएगा हमारा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, राइट? एंड डी, लैक्टोज हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ लैक ऑपेरॉन. दिस इज रॉन्ग. लैक्टोज इज द इंड्यूसर, सो इट डज हैज एन इफेक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ द लैक ऑपेरॉन. सो ये कॉन्सेप्ट जो है आई हैव एक्सप्लेन्ड इन शॉर्ट to you people. I have not explained the very details of it, but I have explained this much कि आप question को solve कर पाओ, right? So that's it for today's video. If you found it useful, अगर आप videos देखते हो and you are finding it useful, आपके concepts build हो रहे हैं, then do subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you're notified every time a video is released on the channel. And I hope आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही है, and just stay motivated until the exam, okay? And I will come up with more questions of KVPY in the next video.